بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کا سفر آخرت۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ گریٹر اقبال پارک میں ادا۔ گریٹر اقبال پارک، آزادی فلائی اوور، سڑکوں پر عقیدت مندوں کا جم غفیر رہا۔ وفاقی وزیر نور الحق قادری سمیت نامور شخصیات کی نماز جنازہ میں شرکت۔ خادم رضوی ملتان روڈ پر مدرسہ ابو ذر غفاری میں سپرد خاک۔ خادم رضوی کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی تحریک لبیک کے نئے امیر مقرر۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود اپوزیشن جلسے پر بضد ہے۔ پی ڈی ایم ارکان سخت لاک ڈاؤن نہ کرنے پر تنقید کرتے تھے۔ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا کم عقلی کی سیاست ہے۔ جلسہ کرنا عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ اپوزیشن کا کل پشاور میں جلسہ، تیاریاں جاری، کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ کل جلسہ ہر صورت ہوگا، 30 نومبر کو ملتان میں بھی جلسہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومتی کورونا مزید 6 مہینے رہ گیا تو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں آپ پوری قوت لگاؤ، ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کیسز سب سے زیادہ، جلسہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ کیسز بڑھے تو ذمہ داری سیاسی قیادت پر ہوگی۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں قانونی کارروائی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ کامران بنگش کہتے ہیں توجہ صحت پر ہونی چاہیے، جلسے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے پر اپوزیشن رہنماؤں پر مقدمہ کریں گے۔ شبلی فراز کہتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے عوام کی زندگیوں سے کھیلنا بڑی خود غرضی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو کورونا سے مرنے دو، ان کی اپنی اولادیں باہر اور غریب کا بچہ قربانی کے لیے درکار ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں کراچی میں لاک ڈاؤن اور پشاور میں جلسہ دوغلے پن کی واضح مثال ہے۔ پنجاب بھر میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نعت، تقریری و کوئز مقابلے کے فاتح طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وظائف کے لیے 50 کروڑ روپے مختص۔ عثمان بزدار کہتے ہیں نوجوان نسل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں سے اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاق کی کراچی منصوبوں پر تیزی سے پیش رفت جاری ہے۔ سندھ کے 700 ارب کے منصوبے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو۔ جزائر سندھ حکومت کے اعتراضات دور کریں گے۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں جزیرے پر فش ہاربر کے لیے 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے، 105 کلومیٹر طویل ٹریک پر 49 جیپ ریسرز کی قسمت آزمائی۔ خواتین کیٹیگری میں سلما خان اور تشنا پٹیل میں مقابلہ۔ قومی T20 خواتین کرکٹ چیمپئن شپ کل سے شروع ہوگی۔ راولپنڈی میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں 3 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پی سی بی بلاسٹرز، پی سی بی چیلنجر، پی سی بی ڈائنامائٹ میں مقابلے ہوں گے۔ ورزش کرتے بچوں کی ویڈیو مشہور، موبائل گیم اسنیک کی جیتی جاگتی مثال بن گئی۔ اسکول میں 2500 بچوں کے بریک ٹائم میں جسمانی ورزش کی ویڈیو وائرل۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سندھ بار کونسل کے امیدوار کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سندھ بار کونسل کے الیکشن کے امیدواروں کے مان میں تقریبات منعقد کی گئی۔ حیدرآباد سینئر وکیل اندرجیت لوہانو، ایڈوکیٹ علی انور سہاڑ،
एडवोकेट गुलाम अली चांग के मान में खैरपुनाथन शाह बार की जानिब से तकरीबात मुनक्किद की गई। मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक के तवाइफ पेश किए गए। उस मौका पे खैरपुनाथन शाह के बार के सदर शोबान अली मल्ला, खैरपुनाथन शाह के बार के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट के डेरो की जानिब से यकीन दहानी की गई कि इंशाल्लाह इलेक्शन में हम आपके साथ हैं। उस मौका पे मेहमानों का मजीद कहना था कि आने वाले इलेक्शन में हम इनके साथ हैं और आगे जाके ये सारे सिंध के बुकला की खिदमत सर अंजाम देंगे। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुनाथन शाह। साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में महकमा फूड अथॉरिटी की तरफ से जहाज ग्राउंड में कोर्ट रोड पर छापा मारकर बेकरी से मुस्तरद शुदा 4500 खराब अंडे बरामद कर लिए। खराब अंडे बेकरी आइटम्स में बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। अंडे तलब करके कोल्ड स्टोर मालिक को 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। इस मौके पर अपने अहले इलाके ने उनकी कारकर्दगी को सराहा और इस मौके पर महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान का कहना था कि मिलावट शुदा अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिलाजवाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। घोटकी थाना ए सेक्शन पुलिस की मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी थाना ए सेक्शन पुलिस की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई, मंशियात फरोश और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। ए सेक्शन थाने पर नए तैनात होने वाले SHO इमामदीन चांडियो ने SSP घोटकी उमर तुफैल की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रात SHO थाना ए सेक्शन इमामदीन चांडियो ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए अंडर बाईपास के मकाम पर एक मुलजिम खान वल्द साइन डिनो कोरी को 220 ग्राम चर्स, 1 चाकू और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को थाने पर लाकअप करके इसके खिलाफ नार्कोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने दौरान गश्त कलमा चौक के नजदीक एक मुलजिम रियाज अहमद वल्द शम्सदीन कडानी को पान पराग बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO इमामदीन चांडियो ने बताया कि शहर भर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने जराइम में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। पुलिस गश्त को मजीद बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहरियों की जान व माल का तहफ्फुज हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। भवाना के शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना के शहरियों को इनकी दलील पर इंसाफ की फराहमी के लिए थाना भवाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिरियोट बिलाल जफर शेख ने की, जबकि इनके साथ DSP भवाना वकारो लक भी शरीक हुए। SHO थाना भवाना, SHO थाना लंगराना, इसके अलावा तमाम तफ्तीशी अफसरान भी शरीक हुए। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अपनी दरखास्तें DPO को पेश की। इस मौके पर DPO चिरियोट बिलाल जफर शेख का कहना है कि हुकूमत पंजाब और IG पंजाब की हिदायत पर चिनियोट के तमाम थानों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया है, ताकि लोगों को चिनियोट का सफर न करना पड़े। पूरे पंजाब की तरह चिनियोट में भी खुली कचहरी के सिलसिले जारी हैं। इसका जो मकसद है वो ये है कि लोगों के मसाइल सुनने के लिए उनकी दहलीज पे आया जाए और उनको उन्हें प्रोवाइड किया जाए। इस हवाले से आज की खुली कचहरी में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी दरख्वास्तें पेश की हैं, जिसके ऊपर इंक्वायरीज मुख्तलिफ ऑफिसर्स को लगा दी गई और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इन तमाम इंक्वायरीज़ का फैसला सामने आए और जो मुद्दई हैं उन्हें इंसाफ मिले। इनका यह भी कहना है तमाम दरखास्तें मुतलका तफ्तीशी अफसरान को मार कर दी हैं। इन दरखास्तों पर जल्द फैसला करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंसाफ की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, भवाना। सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला मटियारी की जानिब से मटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात जानते हैं शाहिद खास खेली की इस रिपोर्ट में। सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिले मटियारी की जानिब से पार्टी वाइस चेयरमैन अल्ताफ जिस्कानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए STP मरकजी रहनुमा जाम शौकत अबड़ो, अब्दुल फत्ता गाओटी, अब्दुल हकीम नो पोटो, मलार शीदी, रसूल बख्श सोलंकी, लियाकत खोसो, गुलाम कादिर मेमन और मूसा लड़कों की सरबराही में मटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में STP कारकुन शरीक थे, जो कि शहीद अल्ताफ जिस्कानी के कातिलों के खिलाफ शदीद नेराबादी कर रहे थे। मुजाहरीन
से खिताब करते हुए पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि शहीद अल्ताफ जिस्कानी की कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में लाया जाए। रहनुमाओं का कहना था कि दहशतगर्द तंजीम MQM के कुछ दहशतगर्द शहीद अल्ताफ जिस्कानी के कत्ल में मुलव्वस हैं। हुकूमती उहदेदार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि MQM को राय की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए फंडिंग हो रही है। इसके बावजूद सिंध के देही इलाकों में MQM की दहशतगर्द फिर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। रहनुमाओं का कहना था कि STP के सब्र को कमजोर न समझा जाए। हमारे कायद डॉक्टर कादर मक्सी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर उन 72 घंटों में शहीद रहनुमा के कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो STP खुद कातिल तलाश करेगी। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज मटियारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेहलम में आज 11 अफराद की रिपोर्ट्स मुस्बत मौसूल हुई हैं। अभी तक जेहलम में 51 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जिला जेहलम में इस वक्त कोरोना वायरस के 13 मुमकिना मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत जेहलम ने गुज़िश्ता रोज़ तक कोरोना वायरस के मुश्तबा 33,182 अफराद के नमूने लेकर लेबार्ट्री भिजवाए हैं, जिनमें से 594 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई है। अब तक 534 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज सेहतियाब होकर घरों को भिजवाए जा चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से 9 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत जेहलम ने DC जेहलम की हदायत पर अमल करते हुए 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज के 270 अफराद के नमूने लेकर कोरोना वायरस की तशखीस के लिए लेबार्ट्री भिजवाए हैं। अब तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के 25,476 तलबा और असातिज़ा के नमूने भिजवाए गए हैं, जिनमें से 33 अफराद की रिपोर्ट मस्बत मसूल हुई है। अब तक कुल 30 स्कूल और कॉलेज सील किए थे, जिनमें से 14 स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं, जबकि 16 स्कूल अभी तक सील हैं। कैमरामैन टीम के हमरा अब्दुल रहमान गुज्जर, नुमाइंदा हक न्यूज़ जेहलम। मीरवा गोरजानी के नज़दीक एक गांव में गन्ने की फसल में तारों की स्पार्किंग की वजह से आग लग गई। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी के नजदीक गांव गुलाम अली तालपुर में गन्ने के फसल में 11,000 वोल्टेज की तार के स्पार्किंग की वजह से आग लग गई। 20 एकड़ पर खड़े गन्ने की तैयार फसल अपने लिपट में ले ली। टाउन कमेटी मीरवा गोरचानी की फायर ब्रिगेड गाड़ी वक्त सर पहुंच गई और इलाकी मकीनों की तरफ से आग बुझाने में मसरूफ। हक न्यूज मीरवा गोरचानी। साहिवाल हफ्ता शायान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में नात ख्वानी और तकरीरों के मुकाबला जात हुए। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल हफ्ता शाह रहमतुल्लाह आलमीन के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें नात और किरत के अलावा तकरीरी मुकाबला जात भी मुनक्कद हुए, जिसमें यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले तलबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का इनकाद यूनिवर्सिटी के मजीद अमजद लिटरेरी सोसाइटी ने किया था। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मोहम्मद अकील इशफाक थे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मोहम्मद अकील इशफाक ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबात में शील्ड तकसीम की। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। साहिवाल चीचावतनी कचहरी में वकला के लिए बनाए जाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावतनी कचहरी में वकला के लिए नए बनाए जाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़द की गई। तकरीब में वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सदर बार चौधरी इशफाक वली एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुश्ताक अहमद साहू एडवोकेट ने ईंट लगाकर चैम्बर की तमीर का बाकायदा तौर पर आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने वकला की कंटीन और वकला के मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड का भी इफ्तिताह किया। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। घोटकी में मुसल्लह अफराद की मोहम्मद अली चाचड़ के घर पर अंधाधुन फायरिंग। मोहम्मद अली चाचड़ मौजूदाना तौर पर बच गए। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी बग्गोवा के इलाके में मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद अली चाचड़ के घर पर अंधाधुन फायरिंग कर दी। मोहम्मद अली चाचड़ मौजूदाना तौर पर बच गए। वाक़ये के बाद बड़ी तादाद में चाचड़ बिरादरी के अफराद जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। फायरिंग के वाक़ये के खिलाफ चाचड़ बिरादरी के अफराद का पीपल्स पार्टी सिटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हसन चाचड़ मोहम्मद अली चाचड़ की क़यादत में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चाचड़ बिरादरी के अफराद नूर हसन चाचड़, अफजल
افضل چاچڑ, عبد الرشید چاچڑ اور صدورو چاچڑ نے گھر پر حملہ کر کے اندھادھند فائرنگ کر دی. فائرنگ کے دوران محمد علی چاچڑ موزانہ طور پر بچ گئے اور ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ صدورو چاچڑ پولیس کو کچو پنڈی تھانے پر روپوش ہے, مگر پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی, جس کے باعث وہ سرے عام گھوم رہا ہے. مظاہرین نے کہا کہ کچے کے علاقے میں محمد علی چاچڑ کی 105 ایکڑ زرعی زمین ہے, جس پہ 50 ایکڑ پر گنے کا فصل ہے. اس زمین پر ملزمان نور حسن چاچڑ اور صدورو چاچڑ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ معاملے کا نوٹس لے کر ملزمان کو گرفتار کر کے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی, حق نیوز, گھوٹکی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز.